बजे तक बैठना है, 8:30-9 बजे तक चलिए। And one thing was very clear in every lecture. I think it was clear to 90% people in the class. That is why there used to be a large number of presence in this class. And the factor was कि पढ़ना नहीं है. That was the major factor कि भाई चलो कोई बात नहीं, पढ़ना नहीं है, उसमें पढ़ना नहीं है. And that was intentionally which I was doing. यार इतना पढ़ के तो आए हो ना 12-14 साल से, पिछले 15 साल फॉर पास्ट 15 years 10+2 किया, 3 साल ग्रेजुएशन किया. Some of you must have completed your post graduation also, but in these 15 years what was missing in you was that you did not try to know कि what is the importance of studying. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. सर ये गेम बहुत, इट्स नॉट अ टफ गेम एंड देयर इज नो गेम इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज टफ. What was the reason for Chauri Chaura incident? Now you cannot say it's a tough question. Assassination. It's very important. That incident led to the end of non-cooperation movement. It's a very important question. कि what was the reason of Chauri Chaura incident? After completing it in the class, leave, you did not study for 15 years, that was a different thing, or you studied but you had a wrong approach. This incident led to the end of non-cooperation movement. There was a retired army soldier, Bhagwan Deen Ahir. Today when you go back, type Chauri Chaura in Wikipedia, you will get the entire incident. There was a retired army soldier, Bhagwan Deen Ahir. He started a protest against price hike of day-to-day commodities. सब्जियों के दाम बढ़ गए, खाने पीने चीजों के दाम बढ़ गए, and he was against liquor shops. कि ये शराब की दुकानें जो बाजार में ज्यादा खुल गई इनको बंद करो. तो he took some of the peasants and sat on the protest in the heartland of Devariya, Chauri Chaura. मेरी मोटिव ये था पूरे 12 क्लास में, the one and only motive of mine was to make you think. आप मुझसे क्या सीखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो सबसे पहली चीज सिखा रहा था, which is called as the mother of knowledge, that is curiosity. This was the first thing which I was trying to give you, curiosity. कि whenever you see any development, अब राजा राम मोहन रॉय पढ़ लिया एनसीईआरटी से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ लिया एनसीईआरटी से, पढ़ लिया ना. बंगाल प्राइमर क्या है, सारे क्वेश्चन पता है प्री में कैसे सिलेक्शन होता है. प्री 60-40 का गेम होता है प्री, और सारे 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, सारे हर साल. दिखा दूं, तुम ले आओ दिखा दो. पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे अलेक्जेंडर डफ का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द नेम इज गिवन, यू हैव टू डू R&D ऑन दैट. एवरी इवेंट which is given in NCERT is without R&D. You have to do R&D. You got my point? They'll make a question on Chauri Chaura and you will not be able to do. If you fail to do a question on Chauri Chaura, you're out of the game. Relevancy means, important means that something may be important for a particular time, but after that time, the importance can come to an end. Relevancy means the importance will never end. जब तक तुम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, जब तक क़यामत तक, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विल बी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, रेलेवेंट. ये मैं आपको बता रहा था पिछले 12 क्लास में, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म क्यूरियोसिटी. दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो शायद आपने गौर नहीं की, बिकॉज ये एग्जामिनेशन जो 31st मई को है ना सर, दैट इज परफॉर्मेंस. 31st May you don't have examination. Examination is every day. Thirty-first May is performance. Examination is every day. ये जो आपके 60 दिन बीतेंगे ना, 90,
Every day will be a stress. Every day will be a pain. Every day will be a challenge. And in that pain, stress and challenge, you have to face the day-to-day life. You have to face your family. You have to face your parents. अब तुम इस वक्त स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, और घर से फोन आ जाएगा कि यार पापा का बीपी हाई चल रहा है, लो एक और चीज आ गई, उसमें वो मकान मालिक आ जाएगा कि भैया अगले महीने खाली कर दीजिएगा। और आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वो खोलने का मतलब यह है कि यू आर टेकिंग अ बंच ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। तीन नेगेटिव न्यूज चारों तरफ प्रमोट हो रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, किलिंग हो गई, मर रही, बस जल रही है पूरी दुनिया। Second word which was telling you was connectivity. Every event is connected to the other event. Without connectivity कुछ है ही नहीं सर। Connectivity. Raja Ram Mohan Roy is writing a book, Gift to Monotheism, 1809. लिखा ना, India is a country of unity and diversity. सबको साथ में लेके चलना है। Gift to Monotheism, in which he speaks, in which he talks about the unity among all the religions. Yes or no? But 90% people are illiterate. वो 90% उसे पढ़ तो पाएंगे नहीं, तो फिर बुक लिखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो 1814 you will see he establishes आत्मीय सभा. See the connectivity between the book and the organization. Connectivity. तुम भागो मत यार किसी चीज को लेकर, डोंट रन। 13 चैप्टर्स हैं मॉडर्न इंडिया में, और मैंने 13 वर्ड निकाले हैं, हर चैप्टर का एक वर्ड। एनसीईआरटी में आरएनडी नहीं है, समरी है। उस समरी को ओपन करना है, तो उसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा। पर तुम क्या सोचते हो कि यार चौरी चौरा का तो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दिया नहीं, कैसे देगा यार? समरी है वो, समरी। एनसीईआरटी इज अ समरी। गुरु का बाग इंसिडेंट, समरी, वो वर्ड मेंशन कर दिया, फिनिश। अब वो उसे वहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तुम्हारा होमवर्क है। दैट इज योर होमवर्क। फिर इंडिया का जो आदमी है वो सुपरस्टिशन से परेशान है, बैकवर्डनेस से परेशान है, रिलीजन इज अ पेन फॉर हिम। तो उन्होंने एक और किताब लिखी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1820 में। तो उसमें इन दैट बुक ही एक्सप्लेन्स द रीजन बिहाइंड एवरी फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन एंड कस्टम। कनेक्टिविटी। अब किताब लिखी परसेप्ट्स ऑफ जीसस टू एनलाइटन द पीपल अबाउट सुपरस्टिशंस, रॉन्ग ट्रेडिशंस, फिर वो भी लोग नहीं पढ़ सकते, तो फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ब्रह्मो समाज, द सोसाइटी ऑफ एनलाइटेंड पीपल। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। ये दूसरी चीज मैं आपको सिखा रहा था। तीसरी चीज जो मैं आपको सिखा रहा था वो थी कॉन्सेप्ट्स। पूरा 12 क्लास का, और रिकॉल करो आप तो पूरे 12 क्लास का थीम यही था, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट। आप मत पढ़ो सर, यू डोंट पिक अप द बुक्स, बट व्हेन यू पिक अप। मैं अभी पुणे से जा रहा हूं, आके यहीं बैठा होता बैग लेके। सर आप मेरा बैग ओपन करो, आपको 3-4 किताबें नहीं मिलेंगी। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। आप या तो मत पढ़ो सर, पढ़ो ही मत, पर जब आप पढ़ो ना सर, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ध्यान रखो।